Assalamu alaikum students. Hope you all are doing good. A very warm welcome to all of you in this session. Today we are going to start a new chapter of the class 12th organic chemistry. That's the chapter number 12, which is aldehydes, ketones and carboxylic acids. And in today's lecture we'll talk about the introduction as well as the nomenclature of the aldehydes and ketones. But before starting today's lecture, make sure you have got copy as well as pen in front of you so that you can mention all those important points that I am going to teach you in today's lecture. So let's start. Aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones. They are the organic compounds containing carbonyl group. They are the organic compounds, or we can say that organic compounds containing carbonyl group. Okay, so organic compounds containing carbonyl group are known as the aldehydes as well as the ketones. And on the basis of the presence of this carbonyl group, such compounds are also called by the name of the carbonyl compounds. So what is now this carbonyl group? It is simply C double bond O side chain, and here is another side chain. This is what we call as the carbonyl group. When carbon is doubly bonded with the oxygen, and on either side here is one side chain and there is another side chain, and this group we called by the name of the carbonyl group. This group we called by the name of what? Carbonyl group. And if this group is present in the compounds like aldehydes as well as the ketones, then we call these compounds, such compounds, by the name of carbonyl compounds, right? Now, what are the aldehydes and what are the ketones? मैंने आपको पहले ही बताया, aldehydes are the organic compounds which contains carbonyl group. एक कौन सा ग्रुप होता है? C double bond O, एक साइड से साइड चेन, दूसरी साइड से साइड चेन. ऑन द बेसिस ऑफ इन्हीं को बेटे हम नाम देते हैं carbonyl compounds. ओके, अब इसमें से कौन aldehyde बन जाएगा और ketone बन जाएगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द साइड चेन. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द साइड चेन. If this oxygen, remember always, if this oxygen is attached to the primary carbon, I can write here, if the oxygen of the double bond, if the oxygen of the carbonyl group, rather we can say that if the oxygen of the carbonyl group is attached to the primary carbon, it is said to be aldehyde. It is said to be aldehydes. बेटे इनको हम नाम क्या देते हैं? aldehydes. इनको हम नाम देते हैं aldehydes. अगर ये ऑक्सीजन, इस कार्बन ग्रुप का ये वाला ऑक्सीजन बेटे दो में से एक साइड की चेंज, मींस कि यहाँ पे हम ला रहे हैं R ग्रुप. वेल R इज एनी अल्काइल ग्रुप. R इज एनी अल्काइल ग्रुप. जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है, R में भी एनी अल्काइल ग्रुप, ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, राइट? अगर हम इस ऑक्सीजन को प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच करेंगे, व्हाट इज दिस प्राइमरी कार्बन? ये जो ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड है किसके साथ? इस कार्बन के साथ. अगर यहाँ पे ये एक ही कार्बन, ये भी होता है प्राइमरी. अगर सिर्फ हम इसी साइड से इस कार्बन चेन को इंक्रीज करेंगे, तो इसको भी बेटे हम क्या नाम देंगे? कार्बन. इसको भी हम नाम देते हैं प्राइमरी कार्बन. फॉर एग्जांपल हम ऐसे बताएंगे, बीच में ये मेरे पास ये जो दो थंब है, ये मेरे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है. ये एक साइड चेन है, ये एक साइड चेन है. अगर यहाँ से मैं साइड चेन इंक्रीज कर रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द साइड चेन ऑन दिस साइड, देन इट इज सेड टू बी व्हाट? प्राइमरी कार्बन. अगर मैं यहाँ पे इस वाली साइड से भी, एज यू कैन सी हियर, अगर मैं इस वाली साइड से भी कार्बन चेन को इंक्रीज कर रहा हूँ, पहले यहाँ से मैंने इंक्रीज किया, अब मैं यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ, तो बेटे इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी. अगर एक ही साइड से कार्बन चेन इंक्रीज हो रही है, दिस इज नोन एज द प्राइमरी. अगर दोनों साइड से कार्बन चेन इंक्रीज हो रही है, देन इट इज नोन एज द सेकेंडरी. और अगर तीसरी साइड से भी कार्बन चेन इंक्रीज हो जाएगी, देन इट इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ द टर्शियरी कार्बन. तो यहाँ पे बेटे अगर ये ऑक्सीजन प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, देन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड वी कॉल्ड बाय द नेम ऑफ व्हाट? एल्डिहाइड. और अगर मैं ये बात यहाँ पे
कर रहा हूँ एल्डिहाइड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं तो मैं इनकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखा सकता हूँ, इट इज C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे मुझे प्राइमरी कार्बन चाहिए तो यहाँ से मैं सिर्फ एक कार्बन को अटैच कर रहा हूँ किसके साथ, शाबाश किसके साथ, R के साथ। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया भाई R इज एन अल्काइल ग्रुप, और दूसरी साइड से मैं यहाँ पे बेटे अटैच कर रहा हूँ हाइड्रोजन। सो यहाँ पे एक जनरलाइजेशन निकलता है, जब आपके पास ये वाला ग्रुप होगा, व्हेन यू हैव गॉट दिस टाइप ऑफ ग्रुप, इसको हम बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं R दैट इज साइड चेन CHO, ऐसे भी आ सकता है CHO। तो जब बेटे आपके पास ऐसा कंपाउंड होगा, सच कंपाउंड्स वी कॉल्ड बाय द नेम ऑफ व्हाट, एल्डिहाइड्स। अगर इस टाइप का कंपाउंड होगा या ये वाला फंक्शनल ग्रुप ये वाला कंपाउंड बन जाएगा और यहां से एक साइड चेन आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, दिस कंपाउंड इज नोन एज व्हाट, एल्डिहाइड। इस तरीके से मेरे बेटे यहाँ पे जो ये वाला कार्बनिक कंपाउंड है जिसको मैंने कन्वर्ट किया अभी किसके अंदर, शाबाश एल्डिहाइड के अंदर। नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस कार्बनिक कंपाउंड इनटू द कीटोन्स। हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस कार्बनिक कंपाउंड इनटू द कीटोन्स? एंड एज यू कैन सी हियर, ये जो कार्बनिक ग्रुप है ना, ये जो ऑक्सीजन है, अगर ये ऑक्सीजन शाबाश सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, इफ दिस ऑक्सीजन इज नाउ अटैच्ड विद द सेकेंडरी कार्बन, मैंने अभी आपको बताया था जहां पे दो साइड से चेन्स को हम इंक्रीज करेंगे, दैट इज नोन एज व्हाट, सेकेंडरी। इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द साइड्स ओनली ऑन द वन साइड देन इट इज सेड टू बी व्हाट, प्राइमरी। गुड। सो अब मैं क्या कर रहा हूं बेटे, इफ आई एम गोइंग टू नाउ इंक्रीज द साइड्स ऑन बोथ साइड्स, ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है बेटे। अब ये ऑक्सीजन अगर सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होगा, जैसे ये एक प्राइमरी कार्बन यहां से आ जाएगा, यहां से और एक प्राइमरी कार्बन ऐसे आ जाएगा, दिस इज वन साइड चेन, दिस अनदर साइड चेन। यहां पे आप R डैश भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहां पे R डैश मैंने क्यों इस्तेमाल किया, यहां पे एक कार्बन चेन सेम भी हो सकती है, यहां पे एक कार्बन चेन डिफरेंट भी हो सकती है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा R, यहां पे लिखा R डैश, अदरवाइज कोई और डिफरेंस नहीं है। Why both these are what, alkyl groups. Now this oxygen is attached with the secondary carbon. ये प्राइमरी कार्बन एक साइड से आया, अब ये और एक साइड से और एक कार्बन, तो ये बन गया सेकेंडरी कार्बन। If this oxygen of this carbon group it is attached to the secondary carbon, this primary और दोनों क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी, क्योंकि दो साइड से हम साइड चेन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। Now it becomes the secondary carbon and जो ये वाला कंपाउंड यहाँ पे बेटे बन जाता है, इसको बेटे हम नाम देते हैं, कीटोन। So I can write here like this, if the oxygen of the double bond, if the oxygen of the carbonyl group, rather we can say that is attached to the secondary carbon, or 2 degree carbon, what we can say that 2 degree carbon को हम और एक नाम दे सकते हैं, also called by the name of 2 degree carbon, then it is said to be the ketones, right? तो यहाँ पे ये फंक्शन तो क्या आ गया, CHO, जैसे जो मैंने यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करवाया था, इस तरीके से बेटे यहाँ पे कीटोन आ जाएगा। कीटोन अब कैसे आ जाएगा, दिस इज द कीटोन। अगर हमारे पास ऐसे होगा R2CO, अगर हमारे पास ऐसे कंपाउंड होगा R2CO, इसका मतलब कार्बोनाइल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच्ड है, देन इट इज सेड टू बी व्हाट, कीटोन। या आप ऐसे बता सकते हो C डबल बॉन्ड, यहां से भी साइड चेन, यहां से भी साइड चेन, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज कीटोन। इसको हमने नाम दिया था एल्डिहाइड, इसको हमने नाम दिया था कीटोन, एंड बोथ कंपाउंड्स आर कॉल्ड बाय द नेम ऑफ द carbonyl compounds because there is a carbonyl group, because there is what, carbonyl group। ये carbonyl group शाबाश बेटे एल्डिहाइड के अंदर भी होता है, ये carbonyl group शाबाश as you can see एल्डिहाइड के अंदर भी होता है, ये carbonyl group कीटोन के अंदर भी होता है। इसलिए बेटे यहाँ पे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कॉमनली यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछेगा बेटे कि जो ये एल्डिहाइड्स होते हैं, जो ये कीटोन्स होते हैं, इनके अंदर कौन सा ग्रुप ऐसा होता है जो कॉमन रहता है, तो जल्द से आपको वहाँ पे आंसर देना पड़ेगा उसको, कि वहाँ पे आपको आना चाहिए वहाँ पे आंसर देना, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि एक कॉमन फैक्टर कौन रहता है शाबाश, एक कार्बोनाइल ग्रुप, जो कि एल्डिहाइड्स के अंदर भी होता है और कीटोन्स के अंदर भी होता है। देन डिपेंड्स अपॉन द साइड चेन, अगर वहाँ पे प्राइमरी कार्बन आ रहा है देन इट इज एल्डिहाइड, अगर वहाँ पे सेकेंडरी कार्बन आ रहा है देन इट इज व्हाट, कीटोन। ओके, So this is a brief introduction about the aldehydes as well as the ketones। ये पहला पॉइंट था, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एल्डिहाइड क्या होता है और कीटोन क्या होता है। Now let's move towards the next important point। Next point,
तो मैंने बेटे यहाँ पे क्या किया था, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से साइड चेन, यहाँ से साइड चेन, राइट। नाउ एज यू कैन सी है, जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, दिस कार्बोनाइल ग्रुप, ये एक एल्डिहाइड भी बन सकता है, ये कीटोन भी बन सकता है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, पहला इंपॉर्टेंट फीचर वो क्या है शाबाश, जो ये कार्बन है, द कार्बन इन दिस कार्बोनाइल ग्रुप, जो प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड्स के अंदर भी और कीटोन्स के अंदर भी, is sp2 hybridizer, is what, sp2 hybridizer, is sp2 hybridizer। अब कैसे, देखो मैंने आपको बेटे इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, वहां पर मैंने आपको कुछ ट्रिक्स दिए थे। अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास अगर 4 सिग्मा बॉन्ड वो कार्बन बना रहा है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटे sp3 if there is no lone pair of electrons। अगर वहां पे बेटे 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, then the hybridization will be sp2। if there are 2 number of sigma bonds, then the hybridization will be बेटे sp। आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको आना चाहिए क्योंकि मैंने आपको पहले से ही चीजें बताई है, राइट। Now, अब यही चीज बेटे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, since there is no lone pair electron on this carbon, so here we can calculate, we can find out the hybridization by calculating the number of the sigma bonds, right? Since this is one sigma bond, ये बेटे pi bond है, ये एक sigma bond है, ये sigma bond है, since there is no contribution of the pi bond in the hybridization, so what we left here 1 plus 1 plus 1, तो कितने sigma bond है, 3 sigma bond है। अगर यहाँ पे बेटे 3 sigma bond है, अगर यहाँ पे बेटे 3 sigma bond है, so इसकी बेटे hybridization क्या होगी बेटे, इसकी hybridization होगी sp2। so I can write here now this carbon is sp2 hybridized carbon, this carbon is what, sp2 hybridized carbon। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये कार्बन है, अगर इसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, then remember shape will be always, shape is what, triangular, shape is triangular planar, shape is triangular planar, that is like this। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल मतलब क्या हुआ, वहां पे 3 एंगल्स, यहाँ पे हम बताएंगे कि एक यहाँ से आ जाएगा और एक यहाँ से आ जाएगा और एक यहाँ से आ जाएगा। और अगर यहाँ पे शेप क्या है बेटे, ट्रायंगुलर प्लेनर है, अगर यहाँ पे शेप ट्रायंगुलर प्लेनर है तो आपको समझना चाहिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल आ जाएगा 120 डिग्री, यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, एज यू कैन सी हियर, ठीक है, एज यू कैन सी हियर। चलो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि ट्रायंगल प्लेनर है, प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, दैट्स प्लेनर, 3 एंगल है यहाँ पे, दैट्स ट्रायंगुलर, और हर जगह पे बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 120 120, टोटल में कितना आ जाएगा 360, क्योंकि ये प्लेन पे लाई कर रहा है। गुड, तो ये सेकंड पॉइंट है, सिंस शेप इज triangular planar, then the bond angle, every side the bond angle will be what, equal to 120 degree। One more very important point regarding this carbonyl group which is present in both aldehydes as well as ketones। इसका मतलब बेटे ये हुआ कि जो मैं carbonyl group के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन में आपको इनडायरेक्टली aldehydes के अंदर भी यही रहेगी और ketones के अंदर भी यही रहेगी सेम। अगर आपसे कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा carbonyl aldehydes या ketones के अंदर, जो कि मैं आपको किसकी वजह से बता रहा हूँ इस वक्त, carbonyl group की वजह से, ये aldehydes के अंदर भी होता है, ये ketones के अंदर भी होता है। इसका मतलब है aldehydes का जो carbonyl group के अंदर जो कार्बन इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2, वहां पे अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, then the shape will be triangular planar। if the shape is the triangular planar, if the shape is the triangular planar, then the bond will be equal, bond angle will be always equal to what, 120 degree, 120 degree and 120 degree। होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने और एक पॉइंट क्या बताया, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल जो रहता है बेटे वो हर जगह पे क्या रहता है, सेम, दैट इज बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 120 डिग्री ईच। ओके, राइट।
नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे, as you can see there is a pi bond, as you can see here is what pi bond. अगर बेटे यहाँ पे pi bond है, अगर यहाँ पे pi bond है, ये pi bond एक highly electropositive और highly electronegative. Remember always there is no much bigger electronegative difference between the carbon and the oxygen, but still this oxygen is more electronegative as compared to carbon. So we can say that this pi bond is slightly shifted towards the oxygen and this will get delta negative and here delta positive will appear on the carbon. और यहाँ पे बेटे एक resonating structure आ सकता है, एक resonating structure यहाँ पे आ रहा है, वो resonating structure ऐसे आ जाएगा, C ऑक्सीजन इसके ऊपर यहाँ से साइड चेन, यहाँ से साइड चेन, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव. तो ये स्टेबल आ जाएगा. अगर ये स्टेबल है, ये स्टेबल कैसे, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस. तो ये एक स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा. जब भी किसी के अंदर एक पॉइंट हम बता सकते हैं स्टेबिलिटी की वजह से, स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस. ये एक फैक्टर है स्टेबिलिटी के लिए. हम बताएंगे जिसके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, जिसके पास रेजोनेंस होगी, डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड्स, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो उसके अंदर रेजोनेंस आ जाते हैं. हम बताएंगे वो मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो हम बताएंगे इसके अंदर क्या हो रही है बेटे, रेजोनेंस. इसके अंदर क्या हो रही है, रेजोनेंस. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे आपको याद रखना पड़ेगा, वो क्या है बेटे, दैट इज द डाइपोल मोमेंट. दैट्स व्हाट, डाइपोल मोमेंट. रिमेंबर इफ दिस pi bond slightly shifts toward the oxygen being high electronegative in nature, so we can say that अगर ये चीज यहाँ पे हो रही है तो आपको बेटे याद रखना पड़ेगा तकरीबन 40 to 50%, 40 to 50% हम बताते हैं. इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट 40 to 50% जो ये कार्बन ग्रुप होता है वो होता है आयोनिक. क्या होता है, आयोनिक. इसके पास आयोनिक कैरेक्टर जो होता है, इसके पास आयोनिक कैरेक्टर जो होता है बेटे वो होता है इन बिटवीन 40 to 50%. तो हम बताएंगे बहुत ज्यादा पोलर है. अगर ये बहुत ज्यादा पोलर है बेटे तो हम बताएंगे इसके अंदर डाइपोल मोमेंट आ जाता है. इसके अंदर क्या आ जाता है, डाइपोल मोमेंट. एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड बेटे इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट आता है जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है इन बिटवीन 2.3 to 2.8 W इज द यूनिट जिसके अंदर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं एज यू नो. तो यहाँ पे हम बताएंगे म्यू किसके बराबर आ जाएगा, 2.3 to 2.8. इसके बीच में इसका डाइपोल मोमेंट होगा, और जब इसके बीच में इसका डाइपोल मोमेंट होता है तो हम बताएंगे ये पोलर होता है. और अगर ये पोलर मॉलिक्यूल होगा तो हम बताएंगे इसकी वजह से बेटे इसका जो मेल्टिंग एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई हो जाता है, वो हाई हो जाता है. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एज वेल एज हाई बॉइलिंग पॉइंट्स. ये बेटे आप यहाँ पे याद रखोगे. They are the important features regarding this carbonyl group which is present both in case of aldehydes as well as in case of the ketones. होप ये आपको बेटे समझ में आ गया होगा. तो हमने बेटे क्या पढ़ा, aldehydes and ketones क्या होते हैं, they are the organic compounds containing the carbonyl group. तो यहाँ पे मैं आपको carbonyl group के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. इसका मतलब डायरेक्टली किसके बारे में हम बेटे पढ़ रहे हैं, गुड, हम aldehydes और ketones के बारे में पढ़ रहे हैं. So the important point, पहला पॉइंट क्या था शाबाश, it is sp2 hybridized. जैसे कि मैंने आपको वहां पे ट्रिक बताई है, how it is sp2 hybridized, right? Second important factor, अगर ये sp2 hybridized है then the shape will be always what, triangular planar, because there is no lone pair electron here, so the bond angle will be equal to 120 degree each every side. ये planar है तो यहाँ पे total bond angle कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा. नेक्स्ट बेटे इसके अंदर रेजोनेंस आती है. यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये डिलोकलाइज होता है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया तो रेजोनेंस इसके अंदर होगी. रेजोनेंस क्यों होगी, क्योंकि ये होता है शाबाश क्या, पोलर कैरेक्टर का. इसके पास आयोनिक कैरेक्टर होता है, कितना होता है 40 to 50%. तो इसलिए पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होता है, किसकी तरफ डिलोकलाइज होता है, ऑक्सीजन की तरफ, बीइंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. तो हम बताएंगे इतना इसके पास आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है. तो अगर इसके पास आयोनिक कैरेक्टर है देन द डाइपोल मोमेंट विल बी देयर. कितना डाइपोल मोमेंट होता है, किस रेंज के अंदर होता है, 2.3 to 2.8 W डाइपोल मोमेंट के रेंज में आता है. तो अगर इतना हाई डाइपोल मोमेंट इस कार्बोनिल ग्रुप के पास होता है, जो कि प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड्स के अंदर भी, जो कि प्रेजेंट होता है कीटोन्स के अंदर भी, सो देयर we can say that there will be high melting as well as the boiling points.
ठीक है ना, देयर हाई मेल्टिंग एज वेल एज द बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू देयर पैरेंट कार्बन चेन। अगर इसको एल्कीन के साथ कंपेयर करेंगे देन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज कार्बन कंपाउंड्स आर हाई एज कंपेयर टू देयर व्हाट एल्कीन्स। होप ये आपको इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब बड़ी जल्द से इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम नोमेनक्लेचर पे आ जाते हैं, राइट। Okay, so the second is the nomenclature of the aldehydes as well as the ketones. As we know that there are two important names so far as any organic compound is concerned. One is the IUPAC name, second is the trivial system. Trivial system को बेटे हम और एक नाम देते हैं, that is the common system. So broadly we can say that there are two ways to give the names. One is the common system. One is the common system, or it is also called by the name of trivial system. इसको हम बेटे और एक क्या नाम देते हैं, trivial system, ठीक है। सिमिलरली बेटे यहाँ पे और एक हम बता सकते हैं जो इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम बताएंगे IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि डिपेंड करता है सर्टेन रूल्स पे। उन रूल्स को हमें अप्लाई करना पड़ता है और हम बता सकते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टार्ट हम करेंगे बेटे किससे, IUPAC से, और उसको हम साथ में ले चलेंगे, शाबाश, किसको साथ में ले चलेंगे, कॉमन सिस्टम को साथ में ले चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट विद द व्हाट, विद द एल्डिहाइड्स। लेट मी गो थ्रू सर्टेन एग्जांपल्स। जैसे कि मेरे बेटे आपको पहले ही बताया था, अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड होगा और CHO, जब भी आपके पास CHO होगा बेटे इसको हम नाम देते हैं एल्डिहाइड। क्या नाम देते हैं, एल्डिहाइड। अगर आपके पास बेटे ऐसा होगा, इफ आई गॉट लाइक दिस मॉलिक्यूल R2CO, R2CO, तो यहाँ पे बेटे आपको याद रखना पड़ेगा दिस नोन एज व्हाट, कीटोन। तो ये एल्डिहाइड बन गया, ये कीटोन बन गया, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू सर्टेन एग्जांपल्स एंड हम उनको वहां पे नाम देंगे कॉमन सिस्टम से और IUPAC सिस्टम से। रिमेंबर ऑलवेज दिस कॉमन सिस्टम और ट्रिवियल सिस्टम, ये ओरिजिन पे डिपेंड करता है, ये सोर्स पे डिपेंड करता है, कहां से निकला है, कहां से डिराइव किया गया है। फॉर एग्जांपल आई गॉट वन ऑफ द कंपाउंड दैट इज लाइक दिस C double bond O, single bond H and single bond H. As you can see है बेटे यहाँ पे CHO आ रहा है, अगर यहाँ पे CHO आ रहा है, यहाँ पे मैंने बताया आपको साइड से साइड चेन कोई भी आ सकता है, हाइड्रोजन भी आ सकता है, R भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे CHO ग्रुप प्रेजेंट है देन इट इज व्हाट, एल्डिहाइड, इट इज एल्डिहाइड। तो यहाँ पे मैंने क्या इस्तेमाल किया, शाबाश, हाइड्रोजन। अगर मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हाइड्रोजन, तो अगर मुझे IUPAC सिस्टम नाम देना है तो मुझे इस वाले ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस। आई गॉट सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सेकेंडरी प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ये आपके पास सीरीज है, सीक्वेंस है, जिसकी वजह से आप किसी को भी नाम दे सकते हो, जो हमने इससे पहले पढ़ा है, हाउ टू गिव द नेम्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सो फार एज IUPAC इज कंसर्न, जो मैंने आपको इससे पहले बताया। अगर किसी को IUPAC नेम नहीं आ रहे देन आई रिकमेंड यू कि आप पहले पिछले वीडियोस मेरे देखो, वहां पे मैंने बताया, अच्छे से आपको समझाया हाउ व्हाट आर द वेरियस रूल्स, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स बाय मींस ऑफ व्हिच वी कैन ड्रॉ द डिफरेंट नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट IUPAC। तो यहाँ पे हमने बताया था पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, दिस इज द सबस्टिट्यूएंट, दिस इज साइक्लिक ग्रुप, दिस इज साइक्लिक ग्रुप, ये होता है वर्ड रूट कार्बन एटम्स, ठीक है ना। प्राइमरी सफिक्स कैटेनेशन होता है, सिंगल बॉन्ड है एन, डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है आइन, और ये होता है अगर कोई वहां पे कोई मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, स्ट्रांग फंक्शनल ग्रुप होगा। ओके, तो ये चीज यहां पे हम बताएंगे। देयर इज नो साइड चेन, सॉरी, देयर इज नो सबस्टिट्यूएंट हियर, यहां पे कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है, यहां पे कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है। तो अगर IUPAC हम इसको नाम देंगे, IUPAC सिस्टम में इसको नाम हम देंगे, IUPAC नेमिंग हम करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रिब्यूटेड। तो कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं, कोई साइक्लिक ग्रुप नहीं, वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 1 को हम बेटे बताते हैं निहित, 1 को हम बताते हैं बेटे निहित, तो हमने लिखा यहाँ पे निहित। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ का हमें नहीं देखना है, हेटेरो एटम का हमें नहीं देखना है, ऑक्सीजन का हमें नहीं देखना है, वी हैव टू सिंपली कंपेयर द बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पे कार्बन और साइड में चेन, साइड चेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन, क्या आ जाएगा, एन, राइट। अब यहाँ पे बेटे ये तो हो गया प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप क्या वहां पे, हाँ जी,
यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटे यहाँ पे CHO, CHO इज अ फंक्शनल ग्रुप हियर बेटे। इसको हम सफिक्स के अंदर नाम देते हैं अल, क्या नाम देते हैं अल, इसको हम नाम देते हैं अल, तो अल आ रहा है यहाँ पे AL। अब अगर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बीच में इसका पहला लेटर, इसका पहला सॉरी इसका लास्ट लेटर और इसका पहला लेटर ये दो वॉवेल्स होंगे तो पहला वॉवेल क्या हो जाएगा कैंसल। मैं पहली बार बता रहा अब उसके बाद रिपीट नहीं करूंगा। ये दोनों में से जो पहला वॉवेल होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अगर कॉन्सोनेंट आ रहे हैं तो वहां पे कोई कैंसिलेशन नहीं होगा। कैंसिलेशन तभी होगी जब दो वॉवेल्स आपस में क्या करेंगे काउंटर अटैक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बताएंगे यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या शाबाश मिथेनल, तो यहाँ पे इसका IUPAC नेम बेटे आ जाएगा मिथेनल, क्या आ जाएगा मिथेनल। तो बेटे इसको हम नाम देते हैं मिथेनल, लेकिन किस फॉर्म में हम बेटे इसको नाम देते हैं मिथेनल, दिस ऑन द बेस ऑफ द IUPAC सिस्टम। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन सिस्टम, रिमेंबर ऑलवेज, रिमेंबर ऑलवेज, रिमेंबर ऑलवेज they are simply called by the name of the aldehydes, इनको हम simply क्या कैसे नाम देते हैं aldehydes। अब aldehydes में और चीज होनी चाहिए, किस टाइप का aldehyde है, कहां से निकला है, that depends upon the oxidation। अगर इस वाले कंपाउंड को आप ऑक्सीडेशन करोगे और वहां पे किस टाइप का एसिड मिलेगा, ऑन द बेस ऑफ दैट एसिड, ऑन द बेस ऑफ दैट एसिड आप उसको नाम दे सकते हो। जैसे अगर हम इस वाले एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करते हैं बेटे तो वहां पे एक एसिड बनता है बेटे, दैट एसिड इज नोन एज व्हाट, फॉर्मिक एसिड। अगर ये एसिड बन जाएगा फॉर्मिक एसिड तो एसिड को फॉर्मिक, ठीक है ना, एक एसिड को हमें वहां पे रिप्लेस करना है एल्डिहाइड से, एक एसिड को हमें रिप्लेस करना है एल्डिहाइड से, तो बेटे यहां पे इसका कॉमन नेम बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन जाएगा बेटे, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन जाएगा बेटे, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड इसका मतलब क्या हुआ, एक एसिड को मैंने रिप्लेस किससे किया बेटे, एल्डिहाइड से। किससे, एल्डिहाइड से। इसलिए मैंने पहले ही बताया दिस डिपेंड्स ऑन द सोर्स, दिस डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिन, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि इस वाले मेथनॉल का कॉमन नेम क्या आ जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। हमेशा याद रखोगे मेथनॉल का फॉर्मल्डिहाइड कौन सा नाम होता है, फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम, मेथनॉल क्या होता है आयुर्वेदिक नेम। बार-बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमेशा के लिए याद रखो बेटे। लेट्स गो थ्रू वन मोर एग्जांपल, लेट्स गो थ्रू वन मोर एग्जांपल। आई हैव गॉट C double bond O single bond H, right? Here is CH3, here is CH3. I got one more example, this is example number 2, this example number 1 पहले हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ सिर्फ किनका, शाबाश एल्डिहाइड का, उसके बाद हम बात करेंगे किनका, शाबाश कीटोन्स का, राइट। तो बेटे अब इसका IUPAC नेम देंगे हम, IUPAC नेम हम देंगे इसको यहाँ पे, कैसे देंगे, ऑन द बेस ऑफ दिस। कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है, कोई प्राइमरी सफिक्स साइक्लिक ग्रुप नहीं है, वर्ड रूट कितने कॉर्नर में बेटे यहाँ पे 2, नंबर 1 वहां से करनी होती जहां पे फंक्शन ग्रुप नजदीक होगा, जैसे मेन फंक्शन ग्रुप ये होगी 1 या गया 2, तो यहाँ पे कितने कार्बन बेटे 2, तो आ जाएगा इथ। अगर 2 कार्बन तो क्या आ जाएगा इथ। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो आ जाएगा एंड, ठीक है बेटे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब कैंसिलेशन पहले ही कर रहा हूँ, पहले ही कैंसिलेशन कर रहा हूँ। ये जो फंक्शन ग्रुप यहाँ पे अल, तो ये आ जाएगा अल, तो बन जाएगा इथेनॉल। क्या बन जाएगा, इथेनॉल। सो इथेनॉल बिकम्स इट्स IUPAC नेम, राइट। अब बेटे इसका कॉमन नेम क्या बन जाएगा, कॉमन नेम बन जाएगा। अगर इसको आप ऑक्सीडेशन करते हो, अगर आप इसको ऑक्सीडेशन करते हो, ऑक्सीडेशन करने पर हमें ये मिल जाता है एसिटिक एसिड। क्या मिल जाता है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में से हमें एक एसिड को रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ द एल्डिहाइड, विद द हेल्प ऑफ द एल्डिहाइड। सो आई कैन राइट हियर it is the acetaldehyde, it is the acetaldehyde, it is the acetaldehyde। बेटे ये दो कंपाउंड्स मैंने आपको बताए। Similarly I have got one more example, I have got one more example like this, as you can see here। listen, one more example like this। I have got example number 3, I have got CH3 CH2 C double bond O single bond H, single bond H। as you can see here बेटे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी, ये थर्ड एग्जांपल है, इसको हमें IUPAC नेम देना है, इसको हमें कॉमन नेम देना है।
Let's go through first of all the IUPAC name. तो IUPAC name के अंदर मैंने क्या बताया? गुड. पहले हमें काउंट करना पड़ता है नंबर ऑफ द कार्बन, क्योंकि यहाँ पे कोई सबस्टिट्यूट नहीं, यहाँ पे कोई साइक्लिक ग्रुप नहीं. So there is only what? We have to start from where? We have to start from word root. तो word root के अंदर से बस नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स कितने हैं बेटे? 3. वेरी गुड. 3 है तो क्या आ जाएगा? गुड. वहां पे आ जाएगा prop. हर जगह पे सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा? एन. ई कैंसिल हो जाएगा. कौन सा ग्रुप फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है? अल. तो आ जाएगा प्रोपेनल. क्या आ जाएगा? प्रोपेनल. सो प्रोपेनल्स का बेटे क्या बन जाता है? IUPAC नेम बन जाता है. वेरी गुड. अब कॉमन नेम क्या बन जाएगा? शाबाश. ये था फॉर्मल्डिहाइड, ये था एस्टल्डिहाइड, ठीक है ना. इसको हम नाम देते हैं शाबाश. ये बन जाएगा प्रोपेनिक एसिड. प्रोपेनिक एसिड है ना, एक एसिड को हम रिप्लेस करते हैं. तो यहाँ पे इसको आपको याद रखना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको. प्लीज इसको आपको याद रखना पड़ेगा. कॉमन नेम को आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डिपेंड करता है सोर्स पे. कोई किसी ओरिजिन पे, वहाँ पे ओरिजिन या सोर्स चेंज हो सकते हैं, इसलिए आपको ये यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. बिकॉज ओरिजिन एंड सोर्स वो प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा. इसका नाम आ जाता है प्रोपियोनल्डिहाइड. Propionaldehyde is the common name. Remember, propionaldehyde is the common name of the propanol. Propanol is the IUPAC name and propionaldehyde is the common name. Similarly, बेटे यहाँ पे और एक ऐसे आ सकता है. We have got example like this, CH3, CH2, CH2, C double bond O, single bond H. ये एल्डिहाइड है. कितने कार्बन हैं? 4, ठीक है ना. तो इसको पहले IUPAC नेम देंगे. IUPAC नेम यहाँ पे ऐसे आ जाएगा. कितने बेटे के पास? 4. तो बन जाएगा ब्यूट. हर जगह पे सिंगल बॉन्ड एन. ई कैंसिल हो जाएगा. कौन सा फंक्शन ग्रुप है? अल. तो ये बन जाएगा ब्यूटेनल. क्या बन जाएगा? ब्यूटेनल. अगर ये ब्यूटेनल बन जाएगा बेटे, IUPAC नेम हो गया. अब कॉमन नेम क्या बन जाएगा शाबाश? याद रखोगे बेटे, आप याद रखोगे शाबाश. क्या आ जाएगा? ब्यूटेनल्डिहाइड. ब्यूटेनल्डिहाइड. Butyraldehyde. Butyraldehyde is the what we call common name of this very compound, this very molecule, which contains one of the important functional group, that is the aldehyde. That's what aldehyde. तो बेटे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताए. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है ना. जैसे लाइक हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है. हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे आ सकता है. एग्जाम्पल नंबर 5. हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे आ सकता है लाइक दिस. वी हैव गॉट बेंजीन C6H5. वी हैव गॉट बेंजीन C6H5. यहाँ पे पहले कार्बन के पास C double bond O, single bond H. तो बेटे ऑन द बेस ऑफ दिस बेंजीन डेरिवेटिव, ऑन द बेस ऑफ दिस बेंजीन, बेटे इसको हम नाम देते हैं बेंजल्डिहाइड. बेटे इसको हम नाम देते हैं बेंजल्डिहाइड. बेंजल्डिहाइड. जो ये बेटे बेंजल्डिहाइड बन गया, इसका नाम, इसका बन गया IUPAC नेम भी. रिमेंबर दिस द ओनली एक्सेप्शन हियर. इसका बन गया IUPAC नेम भी बेटे. ये बन गया इसका कॉमन नेम भी. तो आप आज के बाद याद रखोगे, अगर आपके पास बेंजल्डिहाइड होगा, वो इसका कॉमन नेम भी बनता है, वो इसका IUPAC नेम भी बनता है. तो यहाँ पे हमने बात की कॉमन नेमिंग एज वेल एज द IUPAC नेमिंग ऑफ द वेरियस एल्डिहाइड्स. इसमें से एलिफेटिक भी आ गई, इसमें से ओपन चेन वाली भी आ गई, इसमें से एरोमेटिक क्लोज चेन वाली भी आ गई. बात आई समझ में? वेरी गुड बेटे. इसके बगैर भी हमें कंपाउंड्स मिल सकते हैं. जब हम सेकंड लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन पार्ट, तो वहाँ पे या केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, वहाँ पे अलग अलग हमें मिल सकते हैं. तो जो अलग अलग चीज़ें वहाँ पे हमें मिलेंगी, उनको हम वहीं पे नाम देंगे. फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने अपने यहाँ बताया दैट इज IUPAC सिस्टम. ये बहुत ईजी है, ये आपको आना चाहिए. कॉमन सिस्टम आपको यहीं से देना हो और ये आपको याद रखने पड़ेंगे. आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे इनके कॉमन नेम्स, कहाँ पे क्या कॉमन नेम आता है. IUPAC तो आप बता सकते हो, किसी जगह पे भी अप्लाई कर सकते हो. रूल्स, रेगुलेशंस एंड फॉर्मूलाज तो वहाँ पे आप निकाल सकते हो, लेकिन ये कॉमन नेम्स आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज दिस कॉमन नेम इज डिपेंड्स होली एंड सोली ऑन द ओरिजिन, ऑन द सोर्स, जो कि प्लेस टू प्लेस वेरी होते रहते हैं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज द कीटोन्स. नोमेनक्लेचर ऑफ द कीटोन्स. अब बेटे जल्दी से लिखो, देखो जल्दी से बेटे. So बेटे next is the nomenclature of the ketones, right? जैसे हमने बताया था फंक्शनल ग्रुप रहता है CHO किसके अंदर शाबाश? एल्डिहाइड्स के अंदर. सेम इज द केस हियर.
यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप रहता है दैट इज C डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से साइड चेन होती है, और यहाँ पे एक मेन ग्रुप रहता है दैट इज C डबल बॉन्ड O, इसको हम नाम देते हैं कीटोन। क्या नाम देते हैं? कीटोन। तो हम इसको कॉमन सिस्टम में नाम देते हैं बेटे, IUPAC सिस्टम में हम इसको सेकेंडरी सिफिक्स के अंदर हम नाम देते हैं ऊन। क्या नाम देते हैं? ऊन। तो हम बताएंगे कॉमन सिस्टम में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटे? कीटोन से। लेकिन IUPAC में हम बेटे इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे शाबाश? ऊन से। ONE, ऊन से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स गो थ्रू सच एन एग्जांपल लाइक दिस। आई गॉट C डबल बॉन्ड O, ये हो गया है। यहाँ से प्राइमरी कार्बन, यहाँ से एक कार्बन, लेट मी टेक दिस CH3, यहाँ से और एक कार्बन, लेट मी टेक हियर दिस CH3। तो बेटे ये पहला मॉलिक्यूल बन गया, जो पहला बेटे मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पे जो पहला मॉलिक्यूल है बेटे, इसको हम नाम देते हैं कीटोन, और ये वाला जो कीटोन है ना बेटे, इसको हम कॉमन सिस्टम में, कॉमन नेमिंग में इसको हम नाम देते हैं एसीटोन। इसको हम बेटे नाम देते हैं शाबाश क्या? एसीटोन। इसको हम नाम देते हैं एसीटोन। या और एक चीज हम इसको और एक नाम दे सकते हैं बेटे, और इट्स आल्सो नोन एज, यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप सराउंड कर रहा है, यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप सराउंड कर रहा है, इसको हम और एक नाम दे सकते हैं बेटे डाइमिथाइल कीटोन। इसको हम और एक नाम दे सकते हैं डाइमिथाइल कीटोन, राइट। इसको हम डाइमिथाइल कीटोन नाम दे सकते हैं। लेकिन कौन सा नाम बेटे? कॉमन है। IUPAC नेमिंग में आपको याद रखना पड़ेगा रूल्स जो मैंने अभी आपको बताया था। कोई साइड चेन नहीं है, कोई सबस्टिट्यूट नहीं है, कोई साइक्लिक ग्रुप नहीं है। यहाँ पे सिंपली हम बात करेंगे शाबाश कार्बन। कितने कार्बन में यहाँ पे? 3, 1 2 3। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बीच में आ रहा है, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 3। तो इसको हम नाम देते हैं प्रो। इसको क्या नाम? तो प्रोप आ जाएगा, ठीक है ना? तो प्रोप आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं। IUPAC नेम में नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स, ठीक। तो बेटे जब IUPAC नेम इसको हम देंगे बेटे, तो यहाँ पे हमें काउंट करने पड़ते हैं नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा। यहाँ पे सेम, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रो, यहाँ पे आ जाएगा प्रो, ठीक है ना? हर जगह पे सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स तो आ जाएगा एंड, ठीक है ना? अब 2 पे क्या आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप, तो ये बन जाएगा 2 ओन। क्या बन जाएगा? 2 ओन। अगेन ये वाला यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे इसको नाम पड़ेगा प्रोपेन 2 ओन। क्या पड़ेगा? प्रोपेन 2 ओन। अगर ये हमारे पास ऐसी सिचुएशन होगी कहीं पे हमारे पास कोई ऐसा नाम होगा जहाँ पे सिर्फ एक न्यूमरल होगा, अगर 1 कहीं पे आ रहा है तो 1 कैंसिल हो सकता है 1 के बगैर। अगर एक न्यूमरल आ रहा है अदर देन 1, तो उस न्यूमरल को हम पहले ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ला रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 2। उसके बाद क्या बचा? 2 प्रोपेनोन। ये बेटे इसका बन जाएगा कौन सा सिस्टम? IUPAC सिस्टम। आप इसको बोलो प्रोपेन 2 ओन, या अगर एक ही न्यूमरल है अदर देन 1, तो वहां पे हम बता सकते हैं 1 अगर होगा वो 1 कैंसिल हो जाता है वहां पे। लेकिन अगर 1 के बाद सिर्फ एक ही न्यूमरल है 2 है, 2 के बाद कोई और न्यूमरल नहीं है, तो बेटे आपको याद रखना पड़ेगा इस 2 को हम पहले ला सकते हैं, तो बन जाएगा 2 प्रोपेनोन, राइट। ये था इसका कॉमन नेम, ये बन गया इसका IUPAC नेम। इस तरीके से बेटे वन मोर एग्जांपल लाइक दिस CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। दिस इज एग्जांपल नंबर 2। ये कीटोन है क्योंकि यहाँ पे भी साइड चेन, यहाँ से भी साइड चेन, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन ग्रुप का सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है ना। देयर इज नो हाइड्रोजन ऑन ईदर साइड, ठीक है ना। यहाँ से कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ CH3, ये जो हाइड्रोजन है किसके साथ है? कार्बन के साथ। तो यहाँ पे भी साइड चेन, यहाँ पे भी साइड चेन, सेकेंडरी कार्बन बन गया तो कीटोन हो गया। अगर एक कीटोन हो गया, कॉमन नेमिंग अगर हम देंगे बेटे कॉमन नेमिंग, तो इस साइड से बेटे क्या है? मिथाइल, इस साइड से बेटे क्या है? इथाइल। तो ये वाला क्या है बीच में? कीटोन। तो बेटे इसको हम नाम देते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन। इसको हम नाम देते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन। सिंपली इथाइल मिथाइल कीटोन, सिंपली इथाइल मिथाइल कीटोन, राइट। So far as IUPAC name is concerned बेटे, तो यहाँ बेटे हमें नंबरिंग करनी पड़ती है। यहाँ से फंक्शन ग्रुप नजदीक पड़ रहा है, तो ये बेटे आ जाएगा 1, या आ जाएगा 2, या आ जाएगा 3, या आ जाएगा 4। होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी ने नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है, लेट मी रिमाइंड यू प्लीज,
अगर किसी ने नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है देन यू कैन प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, जहां पे वन ऑफ द वीडियो है जिसके अंदर हमने पढ़ा है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कॉमन नेमिंग ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप वो देख सकते हो, फिर ऑटोमेटिकली आपको नेमिंग आ जाएगी। और अगर किसी ने पढ़ा है, सीखा है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी यहाँ पे, जैसे कि हम बता रहे हैं। इसको कॉमन नेम क्या आ जाएगा? कॉमन नेम आपको याद रखना पड़ेगा एनी हाउ, लेकिन आईयूपीएसी नेम आपको जरूरत नहीं याद रखनी, क्योंकि वो आपको खुद आएगा अगर आपके पास रूल्स होंगे, अगर आपके पास वेरियस मेथड्स पता होंगे कैसे हम मेथड अप्लाई करते हैं एंड हाउ कैन वी गेट द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। तो बेटे यहाँ पे आईयूपीएसी नेम अब क्या आ जाएगा? आईयूपीएसी नेम अब क्या आ जाएगा? सबसे पहले कोई सबचर ने, वहां पे कोई हम बताएंगे साइक्लिक ग्रुप ने, लेट्स स्टार्ट विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कितने बेटे? 4, तो बन जाएगा ब्यूट। ब्यूटाइल नहीं बनेगा। ब्यूटाइल किसके अंदर आता है बेटे? कॉमन नेम के अंदर। यहाँ पे आईयूपीएसी नेम में ब्यूट ओनली 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो ब्यूट आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, तो एन आ जाएगा। ई पहले से कैंसिल, मैंने बताया पहले से कैंसिल हो जाता है क्योंकि इसके पास ओ आता है। क्या आता है? ओ, क्योंकि यहाँ पे हम सफिक्स में क्या नाम देते हैं? ऊन। क्या नाम देते हैं? सफिक्स में हम क्या नाम देते हैं? ऊन। तो ये बन जाएगा ब्यूट एन, ठीक है। अब ऊन कहाँ पे आ रहा है बेटे? 2 पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया 2 ऊन, ठीक है ना। इसको यहाँ पे भी एक ही बेटे का, यहाँ पे भी एक ही न्यूमेरल है, तो यहाँ पे इसको हम और एक नाम दे सकते हैं। 2 को बाहर निकालो, क्या बन जाएगा? 2 ब्यूटेनोन। 2 ब्यूटेनोन बेटे बन जाएगा इसका कौन सा नाम? आईयूपीएसी, राइट। ये तो हमारे पास ओपन चेन वाले कंपाउंड्स हैं। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड ऐसा होगा जैसे लाइक दिस, आई हैव गॉट कंपाउंड लाइक दिस C double bond O like this, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है या क्लोज चेन रिंग कंपाउंड है, ठीक है ना। दिस एग्जांपल नंबर 3। देखो बेटा यहाँ पे ये वाला साइड है, ये वाला साइड। लेट मी टेल यू, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड इस टाइप का होगा, इफ आई गॉट अ कंपाउंड लाइक दिस, रिमेंबर ऑलवेज विद दिस साइड चेन, इसको हम बेटे नाम देते हैं फिनाइल। इसको हम क्या नाम देते हैं? फिनाइल। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ व्हाट? फिनाइल। आप याद रखोगे इसको हम बेटे नाम देते हैं फिनाइल। अब अगर ये फिनाइल C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच्ड होगा, C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच्ड होगा, तो उस टाइम उस कॉमन सिस्टम के अंदर बेटे उसको हम नाम देते हैं फिनूल। अगर ये बेंजीन, ये एरोमेटिक रिंग, ये बेंजीन डायरेक्टली किसके साथ अटैच्ड होगा? C डबल बॉन्ड O के साथ, तो बेटे इसको हम नाम देते हैं फिनूल। इसको हम क्या नाम देते हैं? फिनूल। क्या नाम देते हैं? फिनूल। तो इसको हम नाम देते हैं फिनूल। तो अगर जो ये चीजें हम बताएंगे कॉमन सिस्टम पहले हम देखेंगे। कॉमन सिस्टम इसका, जिसका कॉमन सिस्टम है, कॉमन नेम, वो कॉमन नेम क्या बन जाएगा शाबाश? देखो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे क्या है? फिनाइल। अभी मैंने आपको बताया फिनाइल, तो मैंने आपको क्या बताया? फिनाइल। यहाँ से मिथाइल, यहाँ से फिनाइल, तो कॉमन नेम बन जाएगा मिथाइल। तो कॉमन नेम बन जाएगा मिथाइल, फिर यहाँ से आ जाएगा फिनाइल, फिनाइल, और बीच में बेटे क्या है? कीटोन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कॉमन नेम क्या है। अब अगर बेटे इसको आईयूपीएसी नेम हम बताएंगे, इसको आईयूपीएसी नेम क्या है? मैंने भी आपको बताया था, इस वाले रीजन को हम आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर बेंजीन, when benzene is directly attached with what? With what? With what? C double bond O. Then in IUPAC it is called by the name of phenols. It is called by the name of what? Phenols. Okay? तो यहाँ पे बन जाएगा, ये कौन सा ग्रुप है बेटे? एसीटोन। तो ये बन जाएगा एसीटोफिनोल। तो ये बन जाएगा एसीटोफिनोल, और ये एसीटोफिनोल बेटे इसको कौन सा नाम पड़ेगा शाबाश? IUPAC नाम पड़ेगा, राइट। Similarly, we have got example like this. I have got example like this, like this. Like this, C double bond O, and one more aromatic ring here, like this. अब देखो ये फिनाइल है, ये फिनाइल है। अगर हम कॉमन नेम देंगे, अगर हम कॉमन नेम देंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा इसको कॉमन नेम कैसे हम देंगे। देखो ये फिनाइल यहाँ से, ये फिनाइल यहाँ से, फिनाइल फिनाइल, इसको क्या कहेंगे? डाइफिनाइल। शाबाश, इसको हम क्या कहते हैं? डाइफिनाइल। एक फिनाइल एक साइड से, दूसरा फिनाइल दूसरे साइड से, कॉमन नेमिंग के अंदर, कॉमन नेमिंग के अंदर बीच में क्या है बेटे? कीटोन। तो ये बन जाएगा डाइफिनाइल कीटोन। क्या बन जाएगा? डाइफिनाइल कीटोन। और यहाँ पे जो ये आईयूपीएसी सिस्टम होगा, आईयूपीएसी सिस्टम होगा, ठीक है ना। आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर आपको बेटे याद रखना पड़ेगा शाबाश, ये क्या बन जाएगा शाबाश? डाइफिनाइल कीटोन। आईयूपीएसी के अंदर हम बताते हैं इसको बेंजोफिनोल, बेंजोफिनोल।
बेंजोफिनोन। क्या नाम देते हैं? बेंजोफिनोन। फिनोन मैंने आपको पहले ही से बता दिया, ठीक है ना। इसमें दो साइड से बेंजीन है, बेंजीन कॉमन नेम के अंदर भी आता है, आईयूपीएसी नेम के अंदर भी आता है। तो यहाँ पे बेंजीन है दोनों साइड से, ठीक है ना। यहाँ पे डाइबेंजीन नहीं आ जाएगा, इसको हम सिंपली नाम देते हैं बेंजो। अब ये सी डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, उसको हम नाम देते हैं फिनोन। तो यहाँ पे इसको क्या नाम आएगा? बेंजोफिनोन। क्या जाएगा? बेंजोफिनोन। वन मोर एग्जांपल लाइक दिस, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो बेटे, as you can see here, if I got compound like this, C2H5 C double bond O single bond like this, ठीक है। अब ये फिनोन है, ये फिनोन है, ठीक है ना। अब कॉमन नेम अगर हम इसको देने पाऊंगी, कॉमन नेम अगर हम इसको कॉमन नेम देना होगा तो कॉमन नेम हम कैसे देंगे शाबाश? यहाँ से इथाइल, यहाँ से फिनाइल, यहाँ से इथाइल, यहाँ से फिनाइल, तो क्या बन जाएगा? इथाइल फिनाइल कीटोन। वेरी गुड। तो क्या जाएगा शाबाश? इथाइल फिनाइल गुड कीटोन, कीटोन राइट, इथाइल फिनाइल। तो ये बन गया इसका आईयूपीएसी। यहाँ पे हमने कुछ कंपाउंड देखे, आप घर पे बुक पे भी ले सकते हो, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स को नाम देना आएगा। प्रोबेबिलिटी कंडीशन आपको रूल पता होना चाहिए, अगर आपको रूल पता नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, आप वहाँ पे मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो नॉमेनक्लेचर का, तब जाके आपको नेमिंग आएगी। लेकिन जो मैंने यहाँ पे कॉमन नेमिंग आपको बताइए, कॉमन नेमिंग इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई और चारा नहीं है। यू हैव टू लर्न इन एनी हाउ, आपको किसी भी सूरत में ये कॉमन नेमिंग आपको याद रखनी पड़ेगी, और आईयूपीएसी के लिए आप रूल्स इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो बेटे आज के पहले लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये पसंद भी आ गया होगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।